Okay, so before moving forward, I will just give you a review of basically what is the queue and how uh, it is implemented using the stack, sorry, using the array, what are the number of pointers, what are the different operations. So it is a FIFO type of data, linear data structure. Means in this, the element which was inserted first, that will be deleted first, like this. So you can see here in this queue, this person was entered in the queue first. So we will denote it by a variable or pointer that is fun, and it is another point location where it is the last one who was entered in the list. So that's why the characteristics, or we can say operation sequence in this queue will be first in first out. It is the queue. Now we are having two locations here. This is the front location, this is the rear location. So if we want to insert an element, then the element will be entered at this position, rear position. So how, like suppose a person is entered here in the queue, so that now the rear element in the queue will be this, and further if someone else is also entered, then that will become at the rear position. Now if you want to delete an element, then the person who was entered for this one, which will be deleted first. So when this person will be out from here, means let's suppose this is out here, so this will become the front. Okay, so we are having two locations, front location and rear location. If an element need to be deleted, then that will be deleted from the front, and if any element need to be added, then it will be added at the rear. Okay, so we are having two operations for this. First one is the enqueue operation, enqueue, or second one is dequeue operation. So it is dequeue operation, de. So enqueue operation means addition of an element, and dequeue operation means deletion. Okay, so we have seen yesterday like how we can implement that, the simple queue using the array. Now we'll discuss how we can implement this queue using the linked list, and we'll do some programming practice on these problems. So in a queue, insertion occur at one end and deletion at the other end. I think it is clear now. Rather than the stack, where the insertion and deletions occurs only at one end only. So operation at the front of a singly linked list are O of 1, but other end O of n. अच्छा वो इसका meaning क्या हुआ? If we are having a singly linked list, like suppose this is a singly linked list or one-way list, so this list is also having two ends. This is the first node or the start node or the head node. So if we want to delete an element in the beginning or the head node or the start node, then the complexity of this operation will be O of 1. What is the meaning of this O of 1? So basically this O of 1 is like, अगर मैं इसको यहाँ से delete करूँगा तो क्या होगा? The start will point from here to here, so there will be only one operation, like this start equal start next. ठीक है, यहाँ तो easy है, but suppose I want to delete this element, तो इसको डिलीट करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है. वाई? बिकॉज अगर ये डिलीट होगा देन दिस विल बिकम द लास्ट एंड नल विल कम हियर. सो यहाँ पे नल प्लेस करना, इट मीन्स वी मस्ट हैव अ पॉइंटर फॉर दिस लोकेशन. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ लाइक वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट नोड एंड वी नीड टू go to that to the previous node to the last node, like this one. तो एक बार तो हमको क्या करना होगा? लिस्ट को ट्रैवर्स करना ही होगा. तो अगर लिस्ट ट्रैवर्स होती है देन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी उस अकॉर्डिंग इंक्रीज होगी. सो अगर इफ a list contains n number of elements, then we need to traverse the n minus 1 elements at least. Okay, so then only we can delete this one. So the thing why I am just expressing these things here,
Basically, the queue is also having two ends. So the thing is where we should put the front and where we should put the rear. तो जैसे मैंने कल भी बताया था, like suppose this is the list and this is the list, then we are having two pointers. तो front का हमको पता है क्या करता है ये, और rear का भी पता है. So front will point to the element at the front position, or basically if any element will be deleted if that is required at that location only. तो कोई भी एलिमेंट डिलीट होगा तो फ्रंट पे होगा, इंसर्शन रियर पे होगा. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डिलीशन कहाँ पर इजी है. तो डिलीशन तो भाई यहाँ पर ही इजी है, क्योंकि अगर कोई पॉइंटर इसको अपॉइंट कर रहा है और इस नोड को डिलीट करते हैं तो एक ऑफ वन कॉम्प्लेक्सिटी वाला ऑपरेशन हो जाएगा और इजी भी हो जाएगा. कैसे? अगर पॉइंटर पहले यहाँ पॉइंट कर रहा है तो लॉजिकली वी विल चेंज द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर टू हियर. यहाँ वो आ जाएगा. अब यहाँ आने से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा. तो फ्रंट तो यहीं पर ही होना चाहिए. इट शुड बी फ्रंट. क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फ्रंट को रखता हूँ और ये एलिमेंट अगर डिलीट करना है तो क्या प्रॉब्लम होगी. हमारे पास इसका एड्रेस तो है फ्रंट के अंदर, बट इसका एड्रेस नहीं है. द नोड दैट इज पॉइंटिंग टू दिस पर्टिकुलर नोड. तो हमको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड जस्ट रीच टू दिस नोड प्रीवियस टू दिस पर्टिकुलर लास्ट नोड. तो कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ओ ऑफ एन. तो फ्रंट लोकेशन ये नहीं होनी चाहिए. फ्रंट लोकेशन शुड बी दिस. ओके, नाउ रियर कौन सा होना चाहिए? अब हम सारी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं. रियर अगर यहाँ पे है तो अच्छा, इंसर्शन तो यहाँ भी इजी है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट अगर रियर यहाँ पर भी होता है तो भी इंसर्शन ऑपरेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज वी नीड टू ऐड अ नोड हियर like this. Rear will come here and it will be null. Okay, so it's final here, like where we need to put the front. So front will be in the beginning of the list and rear will be at the end of the list. Okay, so ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया. इसका रीजन क्या है? डिलीशन ऑपरेशन या हम बोलें कोई भी ऑपरेशन जो फ्रंट या स्टार्टिंग पोजीशन पे हो रहा है लिस्ट में, that will not take much complexity, but any operation which we are performing at the end of the list, then it will take O of n complexity because we need to traverse the list. तो ये दोनों स्लाइड में यही है. ठीक है, जो मैं आपको बताना था. Now unqueuing a node, just give me a second. Just a second.
Okay, so in this way we will represent the list basically. So it will be the front, means the beginning node of the list, and it will be the rear, that is the last node of the list, and this will be the null value. तो अब अगर कोई वैल्यू हमको डिलीट करनी है, then just we need to change the location of the front, and if we want to insert a new element, then we can just simply add that element here. ठीक है, तो न्यू नोड यहाँ पे इंसर्ट करेंगे. ठीक है, इन द एनक्यू ऑपरेशन सपोज दिस पॉइंटर इज कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ दिस न्यू नोड. नाउ व्हाट विल हैपन, दिस विल पॉइंट टू दिस नोड, मीन्स हम इसके अंदर किसका एड्रेस आ जाएगा, न्यू नोड का. तो टू एनक्यू rear is pointing to the last node in the list, rear is pointing here, so rear next equal new node means this operation will be this. ठीक है, ये क्या है, रियर यहाँ पॉइंट कर रहा हूँ, ये क्या है, रियर नेक्स्ट. अभी तो ये लास्ट है, पर जब ये लास्ट हो जाएगा तो ये किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा. तो इट विल बी रियर नेक्स्ट इक्वल न्यू अंडरस्कोर नोड. इट विल बी लाइक दिस. ठीक है, अच्छा अभी तक तो रियर ये था, अब ये यहाँ पर हमारे पास नया नोड हमने ऐड कर लिया, तो रियर कौन सा हो जाएगा, रियर विल बिकम दिस वन. तो रियर इक्वल न्यू अंडरस्कोर नोड मीन्स रियर के अंदर इसका एड्रेस आ जाएगा, तो ये रियर यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा. क्लियर हुआ ऑपरेशन ये वाला, नहीं ये क्लियर है. लिंक लिस्ट से कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं इस क्यू को हम, देखो इस तरह की क्यू है हमारे पास लाइक दिस. तो ये इसको यहाँ मत देखो, ठीक है, जस्ट लुक एट इट हियर, रियर इज पॉइंटिंग एट दिस पोजीशन, रियर यहाँ पे पॉइंट, ये तो हमने यहाँ इसको शो कर दिए दोनों पॉइंटर एक साथ, पर ये पॉइंट किसको कर रहा है, लास्ट नोड को. ठीक है, तो ये क्यू है एंड वी आर एडिंग एन एलिमेंट इनटू द क्यू. और क्यू में एलिमेंट कहाँ पे ऐड होगा, रियर पे ऐड होगा. डिलीशन कहाँ पे होगा, फ्रंट पे होगा. तो अभी हम क्या कर रहे हैं, क्यू को लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट कर रहे हैं वन वे लिस्ट से, और एक नया एलिमेंट ऐड कर रहे हैं. तो नया एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, तो लेट सपोज नया एलिमेंट ये वाला हो गया नए नोड के अंदर. ठीक है, इसका एड्रेस किसके अंदर है, इस पॉइंटर के अंदर है, न्यू नोड, ये हमने अज्यूम किया है इसका एड्रेस इसके अंदर है. ठीक है, अच्छा अब अगर ये लास्ट नोड होता है तो क्या होगा, ये किसको पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नल वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, रियर यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, अब जब ये लास्ट हो जाएगा तो रियर यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको इससे अटैच करेंगे. ठीक, तो रियर यहाँ पॉइंट कर रहा है, इसको अब रियर ये इसको अगर पॉइंट करेगा तो बेसिकली क्या ऑपरेशन होना चाहिए, ये क्या है, रियर नेक्स्ट, और रियर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, न्यू नोड. तो रियर नेक्स्ट इक्वल न्यू नोड. ठीक है, मीन्स इट विल बी लाइक दिस. क्लियर. ठीक है, अब जब ये हमने यहाँ ऐड कर लिया तो रियर किसको पॉइंट करेगा क्यू में, इस वाले लिंक लिस्ट में एंड साइड एंड पोजीशन पे लास्ट नोड को. तो ये रियर यहाँ से कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा. कैसे, रियर इक्वल न्यू नोड, रियर के अंदर किसका एड्रेस दे देंगे, इस नोड का एड्रेस दे देंगे. तो अभी तक तो ये यहाँ पॉइंट कर रहा था, अब किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा. ठीक है, तो दीज आर द नॉर्मल स्टेप फॉर एनक्यूइंग अ नोड इन द क्यू. ठीक, ओके, so okay, now the algorithm for the NQ operation. So first of all we allocate memory for the new node and name it as new node. जैसे अभी हमने एक नया नोड क्रिएट किया और उसको एक पॉइंटर के अंदर उसका एड्रेस स्टोर कर दिया. ठीक है, देन उस न्यू नोड में हमने क्या किया, वैल्यू असाइन कर दी, और अब ऑब्वियस ही बात है वो एंड पे है लिस्ट के में, तो उसका नेक्स्ट पार्ट में क्या आ जाएगा. So the next part means the link field of that node will contain the null value. Okay. Okay. Next, if front equal null, now we will check some more conditions here. So it may be possible like the list is empty in the beginning, then we need to check कि list empty नहीं, empty तो नहीं है कहीं. अगर empty है तो क्या होगा, front will point to the null pointer. तो अगर ये सिचुएशन ये वाली हो जाएगी, लाइक फ्रंट एंड रियर बोथ आर पॉइंटिंग टू नल वैल्यू. तो इस केस में इफ वी आर जस्ट इंसर्टिंग अ न्यू नोड हियर, और इसका एड्रेस हमारे पास है इसमें न्यू अंडरस्कोर नोड.
So if this is the situation, then these both pointer will point to this node. तो ये तो null हो गया, ये वैल्यू यहाँ हो गई, तो ये पॉइंटर दोनों किसको पॉइंट करेंगे? both will point to this node. So this will become the first node. So we'll check here, if front equal null, then front equal rear equal new node. और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे? अदरवाइज this जो हमने भी लास्ट स्लाइड में देखा था, that can be the scenario. Like a list can be there like this. Suppose rear यहाँ पर है और front यहाँ पर है. It is 5 6. तो ये सिनेरियो होगा, तो ये सिनेरियो होगा तो न्यू नोड कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा. ये तो नल है ही, हमने पहले ही सेट कर दिया. ओके, सो इट विल बिकम दिस. इसका एड्रेस है न्यू नोड में. ठीक है, सो इट विल पॉइंट टू दिस, मीन्स रियर नेक्स्ट इक्वल न्यू नोड, दिस वन, एंड रियर विल कम हियर, मीन्स रियर इक्वल न्यू नोड. ओके, सो ये स्टेप हो गई. तो बेसिकली वी आर इम्प्लीमेंटिंग अ लिस्ट, sorry, a queue using a linked list. So this is the situation before inserting the node. Node कहाँ पे insert होगा? यहाँ पे होगा. और this will be the situation after inserting the new node. ये नया node हमने insert कर दिया, तो rear यहाँ से कहाँ पे आ गया? नए node पे आ गया. ठीक है. Now let's suppose we want to delete an element. Okay, so this is the list, or we can say it is the linked queue. ठीक है. Front is pointing to this first node, rear is pointing to this node. ठीक है. अब हम ये नहीं बोलेंगे कि वो लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है. वी कैन जस्ट से लाइक वो लिस्ट में एंड पोजीशन की तरफ है और ये स्टार्टिंग पोजीशन की तरफ है. ठीक है. तो नाउ इफ यू वांट टू डिलीट implement the dequeue operation, so what will be the dequeue operation? Simply the node which is pointing by the front pointer will be deleted. कैसे होगा? अभी फ्रंट यहाँ पॉइंट कर रहा है, we will just move it from here to here. तो लॉजिकली हट गया यहाँ से. हमारी क्यू कहाँ से कहाँ तक हुई? देखो, जैसे सपोज दिस इज द टिकट विंडो एंड दीज आर द पर्सन्स हियर. This person is at the front position, this person is at the rear position. तो लॉजिकली ये क्यू कहाँ से कहाँ तक है? अभी जैसे आप कहीं लाइन में खड़े हो तो क्या बोलोगे? लाइन पीछे से देखते हैं, आगे से देखते हैं? You will check from the front only. So this queue is starting from here, front to rear. अब अगर ये पर्सन यहाँ से हटा देता हूँ मैं, तो फ्रंट कौन सा हो गया? ये वाला हो गया. तो अब क्यू कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक है. ठीक है. तो इन द सेम वे इनिशियली our queue is like this. This is the front node and this is the rear one. तो अगर ये यहाँ से हट जाता है तो फ्रंट कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा. ठीक है. तो this is the dequeue operation. So to remove a node, just do front equal front next. ठीक है. So it will be like this. ये फ्रंट, ये मतलब ये वाला जो एड्रेस है ये फ्रंट के अंदर आ जाएगा. ये एड्रेस कौन सा है? इट इज फ्रंट नेक्स्ट. फ्रंट तो इसको पॉइंट कर रहा है. व्हाट इज दिस? हर एक नोड में किसका एड्रेस होता है? उसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है. तो इसकी ये वाली चीज क्या हुई? ये हुई इसका एड्रेस. तो फ्रंट इक्वल फ्रंट नेक्स्ट मीन्स फ्रंट विल बिकम दिस वन. क्लियर? ओके, सो दिस इज द डेक्यू ऑपरेशन. विल चेक इफ फ्रंट इक्वल नल. तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ऑपरेशन भी पॉसिबल है या नहीं है. देन we will print underflow and end the operation. Otherwise we will save that value, means value equal q front and set ptr equal front. ठीक है. ये क्या किया हमने? यहाँ पे को बता सकता है मुझे? इन द स्टेप नंबर सेकंड ये हमने क्या किया? सपोज इस तरह का क्यू हमारे पास है. ये है रियर, ये है फ्रंट. जब फ्रंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो ये नोड भी फ्री करना होगा ना हमको. तो हम क्या करेंगे? तो इसकी वैल्यू सेव कर लेंगे किसी वेरिएबल में. वो हमने यहाँ सेव कर ली इसको मूव करने से पहले. और दूसरा एक पॉइंटर और लिया हमने टू पॉइंटिंग दिस नोड, क्योंकि ये एड्रेस मिस नहीं होना चाहिए. तो हमने क्या किया? फ्रंट को तो यहाँ से हटा दिया, फ्रंट तो यहाँ पे आ गया. अब इसको फ्री करने के लिए विल कॉल अ फंक्शन देयर दैट इज फ्री, और उसमें क्या पास कर देंगे? ये पॉइंटर फ्री ptr. तो ये नोड क्या होगा? इस नोड को जो एलोकेटेड मेमोरी है वो क्या हो जाएगी? इट विल बी फ्रीड अप.
Clear? Okay, so in the step number second, we are just saving the value of that node that is going to be deleted, this one, and we are assigning a pointer, another pointer to that particular node. After that, we'll check here if front equal rear, तो क्या होगा? There will be a single node, तो front और rear क्या हो जाएंगे? दोनों null कर देंगे, वैल्यू नहीं रहेगी वहां पे कोई. Otherwise क्या होगा? Otherwise this operation will be there, front equal front now. Clear? And we'll free that first node, free ptr. So this is the whole operation. Like we are having this list, and after the deletion operation it will be like this. So after the deletion operation, this node will be removed from here and this node will become the front node. Okay. Okay. So these are the implementations of the queue using the linked list.